أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں آپ کی قرآن ساتھی نورین اکرم جی جزاک اللہ۔ اور آج الحمدللہ ہمارا تیسری انگلی کا تیسرا اشارہ ہوگا انشاءاللہ۔ یوں ہمارے 3 پیج انشاءاللہ وینسڈے کو کمپلیٹ ہو جائیں گے الحمدللہ۔ ہمارا اس کے بعد مڈ کوئز ہوگا، مڈ کوئز کے بعد ہم باقی کے 2 پیجز پڑھیں گے۔ اچھا جی، تھوڑا سا ویٹ کر لیں اور سسٹرز کا، یا پھر ابھی چلے تھوڑا بات شروع کر لیتے ہیں یہاں پہ، تو اینڈ پہ پھر ایک دفعہ پھر دوبارہ سے بات کر لیں گے۔ اب چونکہ ایسا ہے کہ جو ہمارا نیکسٹ، اگر ہم منڈے کو ریویژن کرتے ہیں تو وینسڈے جو وہ بالکل عید کے قریب ہے، تو آپ سب نے گروپ میں چاہے آپ بتا دیں کہ آپ کوئز عید سے پہلے کرنا چاہتے ہیں یا بعد میں، کیونکہ یہ بہت مصروفیت والا ٹائم ہوتا ہے، تو اگر عید کے بعد کر لیں گے تو یہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، تو یہ آپ ضرور بتائیے گا۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنا قرآن پارٹ شروع کر لیتے ہیں۔ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ سب ٹھیک ہیں، کیونکہ ہماری ملاقات اس سے پہلے جو ہوئی ہے وہ منڈے کو ہوئی تھی۔ بتائیے گا سب سسٹرز ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظتوں میں رکھے۔ چلیے جی، اب ہم اپنی کلاس شروع کریں۔ اچھا جی، ایک سسٹر کہہ رہی ہیں عید کے بعد، ہاں جی بالکل اچھے سے سوچ لیجیے، کیونکہ بڑا وہ نا مشکل سا ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے۔ ہمارا اپنا بھی تھا کوئز، تو ہم لوگوں نے بھی یہی سجیسٹ کیا کہ اس کو عید کے بعد ہی کر لیں گے انشاءاللہ۔ چلیے جی، آج ہم نے پڑھنا ہے صفحہ 3 اشارہ سی۔ اب یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی اس فارمیٹ کی کہ ہم اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں، کیونکہ اب آپ نے QC 3 4 5 تک اسی طرح سے 5 6 میں بھی اسی طرح سے چلنا ہے کہ اسی طرح سے پیجز ہوں گے۔ پیجز کے بعد آپ نے یہ کہ ان کے کیسے حصے بنانے ہیں، ہر پیج میں سے 4 حصے کر کے QC 5 تک تو اسی طرح سے ہی چلنا ہے۔ QC 6 میں آگے تھوڑا سا چینج آئے گا، لیکن وہ تب تک ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم کیسے چل رہے ہیں اس کورس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس کورس کو بنانے والوں کے لیے بھی آسانیوں والے معاملے فرمائے۔ بہت آسانی ہو گئی، بہت آسان طریقے سے ہم بہت مشکل باتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ یہاں پر ہم نے جو پہلے شروع کے 4 پیجز ہیں ان میں ہدایت، کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے، اور کس کے لیے نہیں ہے؟ کافرین کے لیے، منافقین کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح سے دعوت القرآن کی بات ہوگی، قرآن کے چیلنج کی بات ہوگی، اور 5ویں پیج میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہ کورس 2 ہے ہمارا، اور ہم نے شروع کے 5 پیجز پڑھنے ہیں۔ اچھا جی، اب کوئی سسٹر مختصر اشارے بتائیے گا۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، 2 روح ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگ، بارش، اور آج ہم نے قرآن جو کی پڑھنا دعوت، ہے وہ ہے قرآن کی قرآن کی دعوت۔ دعوت۔ اچھا جی، اب یہ جو ان کو اشاروں کو رٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے، کیونکہ جہاں پر ہم نے نارن لفظ دیکھا، بات دیکھی کہ مثال کی بھی بات ہوگی، کامثل الذی، اس کے بعد نار کی بات، آگ کی مثال ہو گئی، اسی طرح سے سویبن کی بات ہوئی، تو بارش، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جو تیسرا والا، اس میں آپ کو واضح کوئی ایک لفظ تو نظر نہیں آئے گا، لیکن ہم اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے، یہ بھی ہم اشارے کو جب کھولیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد ہوگا قرآن کا چیلنج، وہ ہمیں اشارے سے ریلیٹ کرنا آسان ہے۔ مختصر اشارے دہرا لیتے ہیں، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پچھلی آیات ہیں اس میں کیا کہا گیا، اس کے بعد پھر قرآن کی دعوت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اب تک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔
जो या तो कुरान से हिदायत हासिल करने वाले थे या फिर कुरान से हिदायत हासिल नहीं करने वाले थे, और कुछ थे कि जो लौटने वाले ही ना थे, और कुछ थे कि जिनके बारे में ये कहा गया कि ये शायद वापस आ जाएं। अब जो इनके बारे में डिटेल है वो हम इसके कुरान की दावत वाले पैराग्राफ से इसको इंशाल्लाह हम समझते हैं। कि पहले तिलावत कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اسباق देख लेते हैं कि तमाम लोगों को दावत, क्योंकि कुरान तमाम लोगों के लिए है। अल्लाह की इबादत करो ताकि तकवा हासिल हो और बचो दुनिया और आखिरत के नुकसान से। डिटेल हम इंशाल्लाह भी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात की जा रही है शिर्क मत करो, क्योंकि रिज्क अल्लाह ताला की तरफ से है। इसमें भी बहुत सी बातें समझने के लिए होती हैं कि रिज्क के मामले में खास तौर पर जैसे कहा गया कि अपनी औलाद को कत्ल मत करो, क्योंकि भूख की वजह से अगर ये काम किया जाता है तो रिज्क देने वाली जात बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4, 3 और 1 लफ्ज नया है, यानी कि हमें पहली 2 लाइन में कोई नया लफ्ज नहीं मिल रहा यहाँ पर। लेकिन ये जो है 4 अल्फाज, इनको भी इंशाल्लाह हम जब गौर करेंगे तो बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं कि ये उर्दू से मिलते जुलते होते हैं। सूरह बकरा जितनी आपने अब तक पढ़ ली, आप देखिए उसमें बहुत सारे अल्फाज ऐसे जो उर्दू से मिलते जुलते हैं। तो और भी कोशिश किया करें कि जो आपको खुद नजर आए, समझ आए, तो वो आप उर्दू से रिलेट कर लिया करें ताकि और भी समझना आसान हो जाए। 3 में से भी मुझे ऐसे अल्फाज नजर आ रहे हैं जिनको या तो हम पहले पढ़ चुके हैं या वो उर्दू जैसे हैं। हाँ जी, एक लफ्ज आज मुझे जो अभी तक नजर आ रहा है वो एक लफ्ज है नया, वो है अंदादन। इंशाल्लाह उसको हम सीख लेंगे। या अय्युहा, या अय्युहन नासु, ए लोगो, उबुदु इबादत करो, रब्बकुम अपने रब की, अल्लाह की जिसने खलक़कुम पैदा किया तुम्हें सॉरी, वल्लज़ीना और उन लोगों को जो मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम लोग परहेजगार बन जाओ। अच्छा जी, या अय्युहा, हमने QC 1 में या अय्युहा जैसे 3 अल्फाज पढ़े थे, याद है किसी को? एक सिर्फ या था, एक अय्यू था और एक या अय्यूहा। या अय्युहा और एक है या अय्यु। ठीक हो गया? अय्युहा भी यूज हो सकता है और इसमें अय्यदुहा भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा जब हम इसको मुअन्नस के लिए यूज करेंगे। मकसद ये है कि ये तीनों अल्फाज का तर्जुमा कैसे किया जाएगा? ए के साथ। या अय्युहन नासु यानी कहा गया ए लोगो। अच्छा जी, ए लोगो क्यों कहा गया? कि कुरान सब के लिए है। ठीक हो गया जी?
अब हम इसको क्लोज करेंगे, आगे जाएंगे। अच्छा जी, नासु और इसके बाद है ओबुदू। ओबुदू के बारे में बताइए। अच्छा जी, यहाँ पर हमने पेश क्यों लगाई, मैंने ओबुदू क्यों कहा? क्योंकि तीसरा क्योंकि वर्ड हमने ये पढ़ा है नंबर हमजा के बाद उस पे पेश है तो हमने पेश लगाया। और एक और चीज कौन सी हमें पता चल रही है कि ये जमा है और ये हुक्म वाली बात है, ठीक है। अमर। और ये हमने अमर कहाँ है। पे किया था, ये कौन सी टेबल में है? टेबल आप टेबल लोग से पता आबादा अबादा नसरा के याबुदु पैटर्न पे उबुद, हाँ जी, आबादा हो गया अमर। उबुद। यानी कि ये जो अब हमने पिछले वीक में हमने पिछले मंडे को जो हमने अमारा वाली क्लास पढ़ी थी, हमने एक बात की थी हमजा और अलिफ की, ये अब बात यहाँ पर पूरी भी हो जाती है। ये जब मिलाएंगे तो इसको कट कर दिया जाएगा, और अगर अलग से पढ़ेंगे तो फिर इसके ऊपर हरकत लग जाएगी। हरकत कैसे लगती है, कुछ तजवीज के रूल होते हैं, कुछ हमने ग्रामर की ये जो क्लासेस ली इसमें सीख लिया कि किस तरह से किस लफ्ज पर पेश आएगी और किस में जेर आएगी। इसको कहते हैं हमजातुल वस्ल। अब ओबुदू, इसके बाद है रब्बाकुम। अब रब्बाकुम ये उसी तरह से जैसे हमने किया था रब्बुहु रब्बुहुम, ठीक हो गया जी। इसको जरा थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम। अब ये रब्बुकुम हो, रब्बाकुम हो या रब्बिकुम हो, इनके माना इसी तरह से रहेंगे। अपने रब के बारे में जो बात की जा रही है ना, जो सामने वाला सीगा, अब पीछे जो हम देखते हैं तब्दीली है जेर जबर पेश की, ये तब्दीलियां इंशाल्लाह हम अगले लेसन में सीखते जाएंगे। यहाँ सिर्फ आप जबर की तब्दीली इस तरह से याद रख लीजिए, जैसे हमने कहा था नासरा जईदन, ठीक है, उसने मदद की जैद की। इसी तरह से ओबुदू इबादत करो, रब्बा, रब्बा की वजह से हमें रब की वाला तर्जुमा मिल गया, ठीक हो गया। यहाँ पर हम अगर रब्बू कहेंगे तो वो फिर उसका तर्जुमा गलत चला जाएगा। तो यहाँ पर एक टिप के तौर पे इसको याद रख ले कि हमने कहा था कि जब मफूल बनाएंगे, हम मफूली हालत में लाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके ऊपर जबर आ जाएगी। जैसे जईदुन से जईदन हुआ था, ऐसे रब्बू से रब्बा हो गया। और अगर आपसे कहा जाए कि इसके टुकड़े कर लीजिए तो आपने रब्बा और कुम दो टुकड़े कर लेने हैं। अभी मैं स्लाइड आगे नहीं लेके जाती हूँ, ठीक है। अभी आप लोग मुझे बताइए इस तरह के और आपको वर्ड नजर आ रहे हैं जिसमें हम इसी तरह से दो दो टुकड़े बना सकते हैं। मैम एक दफा और समझा दी। और खलाक़कुम खलक़कुम और क़ब्लिकुम। क़ब्लिकुम। जी, कोई सिस्टर ने क्वेश्चन किया था? जी मैम मैंने कहा था कि ये उबदू और ये रब्बा को दोनों एक दफा और बता दें। हाँ जी, ये उसी तरह से जैसे हमने कहा था नफरा, उसने मदद की। उसके बाद हम कहते हैं कि जिसके ऊपर काम हो रहा है। अब जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिनकी उसने मदद की, इसमें हुआ है ना, वो उसने मदद की, किसकी मदद की? नौसरा जईदन, ठीक है। जी अब आप उसी को उबुदू पे ले आए, वो तो नौसरा था ना, उन शुरू पे ले आए। जी उन शुरू, उन सब ने, या तुम सब मदद करो, किसकी, किसकी मदद करनी है? अब इसको आप जो भी इसम लगाएंगे उसके ऊपर जबर दे देंगे, ठीक है। हामिदा, जईदन ठीक है, जो भी आप लगाएंगे ना, हामिदा लिख ले, खालिदा लिख ले, तो उसके ऊपर जबर लगानी। अगर पेश लगाएंगे ना तो फिर वो आपका सेंटेंस पूरा उसका माना जो मफूल है, मफहूम बदल जाएगा, ठीक हो गया। ये अभी बहुत आगे हमने इसको सीखना है, ज्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। यहाँ तक ये कि ये हमारा कॉन्सेप्ट उससे मिलता जुलता है। और आप ये गलती ना कर लें कि यहाँ पर पेश लगाने वाली गलती, अगर जैसे हमें पता ना हो तो हम कर जाते हैं, तो वो ना करें। इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा खोल दिया है, ठीक है, कि ओबुदू इबादत करो रब्बा। अब कुम ना भी हो, हमें पता, ओबुदू इबादत करो रब्बा, रब की। कुम तो आ गया कि क्योंकि ओबुदू में तुम सब था, तो कुम अपने लिए फिर उसी को, जैसे अब हम अगर ओबुद होता तो हम कहते हैं रब्बा का, ठीक हो गया। हाँ जी हाँ जी चलिए जी, अब ये जो खला का कुम है ये भी इसी तरह से हो जाएगा, खला का पैदा किया, ठीक है, पैदा किया तुम सबको। अब तुम सबको कह लें या तुम्हें कह लें, को की वजह से हमें समझ आ जाती है
کہ یہ جو ہے تم سب इनके ऊपर काम हुआ है। किसने काम किया? उसने, खलाका यानी कि अल्लाह ने। ठीक हो गया जी। अब ये जो इस तरह के दो जुड़े जुड़े वर्ड है ना, इनमें देखा करें कि ये जो ज़माइर मुत्तसिला, ठीक है, ये जो जुड़ जुड़ के आते हैं, इनके साथ फिर हम ये कर सकते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि आप इसके टुकड़े बनाए, तो हमें पता होगा कि रब्बकुम, खलक़कुम, क़ब्लिकुम, कुछ अफ़ाल के साथ आ जाते हैं और कुछ आ जाते हैं अस्मा के साथ, लेकिन ये इसी तरह से अलग होंगे। अल्लाह जी हम बार बार कर चुके, जिसने, अल्लाह जीना इसकी जमा है। खलाका का पूरा हम टेबल करके आए हैं। खलाकाकुम, पैदा किया तुम्हें। वल्लज़ीना, और उन लोगों को, मिन भी हमने किया, मिनहुम वाला। क़ब्लिकुम, तुमसे पहले थे। और जब अगर आप देखें ना कि ये इस्म है जैसे क़ब्ल, तो आप इसका पूरा टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको कर लेते हैं क़ब्ला, ठीक है, एक लफ्ज़ है हमारे पास, जैसे था दीनू, इसी तरह से समझ लें कब्लू है। कब्लुहु, कब्लुहुम, कब्लुका, कब्ली, इसके बाद कब्लुकुम और कब्लुना। अब ये जो ज़ेर ज़बर पेश आ जाती है, इसकी तब्दीलियाँ इंशाल्लाह हम आगे आगे सीखते जाएंगे, लेकिन टेबल ये उसी तरह से बनते जाएंगे जैसे रब्बुहु, रब्बुहुम वाला। और हम पेश वाला टेबल इसलिए बनाते हैं, ये पढ़ना आसान होता है। बन सारे सकते हैं, ये ज़ेर के साथ भी बन सकता है और ज़बर के साथ भी। उसी से मिलता जुलता एक और आ गया, लअल्लकुम, ताकि तुम सब, तत्तकून, परहेजगार बन जाओ। अब ये जो है लअल्ला है, ठीक है, क्या इतना वर्ड है लअल्ला। यहाँ से जब अगर हम इसको करेंगे तो ये इतना हमारा हो जाएगा अलग और कुम अलग हो जाएगा। जैसे अब हम कहें लअल्लाहु, ठीक है, स्लाइड को हम जरा कर लेते हैं सेट। लअल्लाहु, लअल्लाहुम, लअल्लाका, लअल्ली, उसके बाद लअल्लाकुम और लअल्लाना। ये इसी तरह से पूरे पूरे टेबल, जरूरी नहीं है कि बनाने, समझने के लिए इसको हम इस तरह से एक दफा पढ़ के भी देख सकते, ताकि ये अच्छी तरह समझ आ जाए कि ये दो अल्फाज हैं, उनको मिलाकर, यानी कि एक हमारे पास हर्फ है या इस्म है, जैसे हमने हुरूफ के साथ भी किया था ना, कि जैसे लहू, लहुम वाले टेबल किए थे, फिर हमने मा और इंदा वाले टेबल किए थे, उनको हम अस्मा कह देते हैं। तो ये इस तरह से मिला मिलाकर हमारे टेबल पूरे हो जाते हैं। तत्तकून, अच्छा जी, तत्तकून, तुम परहेजगार बन जाओ। यहाँ से परहेजगार, अच्छा जी, अगर आपको मैं कहूँ कि आप अपने अल्फाज में बताएं कि परहेजगार बनना कहते किसको, मुत्तकीन कौन है? अगर हमने अपने अंदर ये सिफ्त पैदा करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? जो अल्लाह से डरते हैं। जो अल्लाह से डरते हैं, बिल्कुल। जो अल्लाह की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते, ठीक हो गया, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करे, अल्लाह की रजा का ख्याल रखें। अच्छा जी, या अय्युहन नास क्यों कहा गया? क्योंकि कुरान सारी इंसानियत के लिए, इसलिए अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ए अरब वालों या ए एशिया वालों, बल्कि कहा ए लोगो, पूरी बनी नौ इंसान। कुरान तमाम इंसानों के लिए हिदायत की किताब है। और आप देखें कि बहुत सारे गैर मुस्लिम जो होते हैं वो कुरान मजीद को तर्जुमा के साथ पढ़ते हैं, समझते हैं और इस्लाम की रोशनी अल्लाह ताला उन्हें नसीब फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमें भी दीन की, कुरान की सही समझ बूझ फहम नसीब फरमाए। उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, यानी कि तख्लीक का मकसद क्या है? इबादत करना। और इबादत कैसी? सिर्फ एक अल्लाह की इबादत, मोहब्बत से, खुलूस से, सच्चे बंदे और गुलाम की तरह अल्लाह ताला की इताअत करना। क्योंकि इलाहा कौन है? जिसका हर हुक्म माना जाए, जिसकी नाफरमानी ना की जाए, और जो मोहब्बत से हमारा ख्याल रखता है। और देखिए कि पालने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो बंदे को भी चाहिए कि पूरे खुलूस और मोहब्बत के साथ अल्लाह की मोहब्बत और इबादत के साथ अल्लाह की इताअत इस तरह से करे कि साथ साथ दुआ भी करे कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। क्यों? इसलिए कि उसने हमें बेहतरीन अंदाज में पैदा किया, हमारा वजूद ही इसके होने का सबूत है। अब जानवरों को देखें किस किस तरह से चलते हैं, कोई चार टांगों पे, कोई रेंग के, कोई उछल के, लेकिन इंसान कितने बेहतरीन तरीके से, बावकार तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चलना सिखाया। खाने का तरीका देखिए, 7 तरीके बताए भी,
दाएं हाथ से खाएं, छोटे लुकमे खाएं, चबा कर खाएं। जानवर कैसे खाते हैं? जुबान से चाट कर। और ये कितने बेहतरीन अंदाज में अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया कि हर तरह से बरतरी भी दी। अब इंसान को क्या चाहिए कि वो सही मानों में इबादत का हक अदा करे। इंसान किसी चीज को सुधार तो सकता है, बदल भी सकता है, नोक पलक संवार दी, दुरुस्त कर दी, किसी एक चीज से दूसरी चीज बना ली, डिजाइन कर लिया। अब आप ये देखिए कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया, अब हम क्या कर सकते हैं? इसके हम सीगों को देख सकते हैं, खोल सकते हैं, दोबारा जोड़ सकते हैं, इसके अफ़आल को हम समझ सकते हैं, ज़मायर को समझ सकते हैं, ग्रामर को समझ सकते हैं, यहाँ जुमलों को, फिक्रों को इस तरह से हम समझ सकते हैं। इनको अलग अलग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते? हम कोई चीज पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि पैदा सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए दिमाग और उसी की जानिब से अता की हुई चीजों को इस्तेमाल करके इंसान ढेर सारे काम तो कर सकता है, लेकिन इंसान कोई चीज पैदा नहीं कर सकता। अब इसमें कोई चीज ज़ी रूह यानी कि जिसको रूह भी मिले, वो चीज पैदा होती है। वैसे तो इंसान ने मशीनें बना दी, स्पेस तक चला गया, इंसान बहुत कुछ कर लिया, लेकिन कोई चीज इंसान तख्लीक पैदा नहीं कर सकता। पैदा करना, पालना अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है। इबादत का नतीजा क्या होगा? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम सब परहेजगार बन जाओ, गुमराही से बचो, अल्लाह की नाराजगी से। इसका फिर फायदा क्या होगा? हम दुनिया और आखिरत के नुकसान से बच जाएंगे। जितना खुलूस के साथ हम अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह ताला उतना ही ज्यादा तकवा हमें अता फरमा देगा। तकवा क्या है? अल्लाह का डर है। अल्लाह का डर क्या है कि हम इस बात पर कामिल यकीन रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जगह मौजूद है, हर दम हमें देख रहा है, शहरक से करीब है। अल्लाह के डर से जहां खास तौर पर ताकत होते हुए, मौका होते हुए गुनाह से बच जाना, गुनाह की तौफीक अल्लाह सॉरी अस्तगफिरुल्लाह गुनाह की तौफीक होते हुए गुनाह से बचा लेना, ये अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत है, तकवा है कि आपको कुल इख्तियार था, आप गुनाह कर सकते थे, लेकिन अल्लाह के डर से, अल्लाह ताला की नाफरमानी के डर से बच जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको बचाए, अल्लाह ताला की नाराजगी से बचाए। जिन कामों से मना किया, अल्लाह ताला हमें उन कामों से बाज रखे और नेकियों की तौफीक अता फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और अल्लाह ताला हमें मुत्तकीन में करे इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला हमें ज्यादा से ज्यादा तकवा और करने वाले परहेजगार बनाए। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमान की इबादत करो, खाना खिलाओ और सलाम को आम करो और इसे फैलाओ, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल होगे। सलाम की कितनी फजीलत है! ये जो हाय और इस तरह के जुमलों से परहेज करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू दुआएं दिया करें। ठीक हो गया जी। खाना खिलाने की बात सिर्फ ये कि मस्कीनों, यतीमों, सिर्फ इन लोगों को खाना नहीं खिलाना, बल्कि एक दूसरे की अच्छी दावत, एक दूसरे को अच्छे तोहफे तोहफ़, ये सारी चीजें भी इबादत में शामिल हो जाती है अगर हमारी नीयत अच्छी हो। और इबादत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की। ये सारी चीजें ये क्या करेंगे? जन्नत में सलामती के साथ इंशाल्लाह हमें दाखिल होने में मदद करेंगी। अच्छा जी, जब ये दी जाए ना, हवाले दिए जाए, जैसे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, तो इसको आप चेक भी कर लिया करें कि कहीं ये, बाज़ दफ़ा ये भी हो जाता है कि टाइपिंग की वजह से थोड़ा चेंज भी हो जाता है। अगर आपको नज़र आए तो ज़रूर बताया भी ज़रूर करें। अल्लिम, अब कौन पढ़ना चाहेगा? इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ लें तर्जुमे के साथ। जी, जवेरिया सही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु, ए लोगो, अबुदू, इबादत करो, रब्बकुम, अपने रब की, अल्लज़ी, जिसने खलक़कुम, पैदा किया तुम्हें, वल्लज़ीना, और उन लोगों को, मिन, जो कबलिकुम, तुमसे पहले थे, लअल्लकुम, ताकि तुम तत्तकून, परहेजगार बन जाओ। ठीक हो गया जी। तत्तकून से हमें क्या पता चल रहा है? कि ये जो वाव नून वाली जमा यूज हुई हुई है, तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला हमारा एक टुकड़ा मुकम्मल हुआ। अब हम आगे देखते हैं।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फिराशम वस्समाअ बिनाअन, जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत। वो अनज़ला मिनस समाई माअन, और नाजिल किया आसमान से माअन पानी, फ़अख़रज बिही, फिर निकाला उसके जरिए, मिनस समराती, फलों को, रिज़्क़न लकुम, रिज़्क तुम्हारे लिए। बस ला तजअलू, ना ठहराओ, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अंदादन, शरीक, व अंतुम, और अच्छा अब यहाँ पर देखिए कि वाह का तर्जुमा और नहीं किया गया, ठीक है, जबकि इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। जब आप अंदादन के बाद वाव देखें, आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आप तर्जुमा करें, ठीक है। अब इसमें वाह का पूछा जाए कि इस आयत मुबारका में वाह का तर्जुमा क्या है, आपको नीचे 3-4 ऑप्शन दिए जाएं तो आपने खास का तर्जुमा जब के तुम जानते हो ये वाला चूज करना है। हम जिन बातों पे अपने क्विज में या होमवर्क में परेशान होते थे, मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीजें आप लोगों के साथ क्लियर कर दी जाएं, ताकि आप लोग एक एक चीज को समझ सके। अब आप अपने नोट्स वगैरह या आप अपनी बुक के ऊपर लिख लें, जो बुक के ऊपर लिखा था वो भी याद रहता है। वाव का एक तर्जुमा हमने पढ़ा है, और एक तर्जुमा पढ़ा है कसम, और आज एक और तर्जुमा उसमें ऐड कर लीजिए, जब के, ठीक है। वाव के बहुत सारे तर्जुमे हम पढ़ेंगे, एक और तर्जुमा हमें मिल गया जब के, जब के तुम जानते हो। अब हम इसको लफ्ज का लफ्ज भी देख लेते हैं। अल्लाजी वही है जिसने, जाअला, हम जाअला का हमने पूरा टेबल किया, जाअला, यजअलु, इजअल, जाइलुन, मजऊलुन और जअलुन। इसके बाद है लकुम, तुम सब के लिए, लहू वाला जो पूरा टेबल हमने किया था, और द जमीन, ये हम बार बार पढ़ते हुए आए हैं। इसके बाद है फिराशन, फिराशन उर्दू में भी हम फर्श को फर्श ही कहते हैं ना, जमीन को फर्श बना दिया, हमवार कर दिया। समा, समावात, ये हमें याद रहता है कि आसमान को कहते हैं अर्जो समा। हम इसको उर्दू में भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ये कि अब तक यहाँ तक पढ़ते हुए असमा हमें वैसे भी याद हो चुका है कि ये हम कहते हैं आसमान को। बिनाअन एक नया लफ्ज है, बिनाअन कहते हैं छत को। व अनजला, और नाजिल किया, इसको भी उर्दू की तरह जो नाजिल होती है कोई चीज, उसमें याद रख लें कि अनजला और नाजिल किया। इसके बाद है मिनस समाई, आसमान से, माँ अन को आप कुरान मजीद में और भी ढूंढिएगा कि माँ अन कहाँ पर है, इसका मतलब होता है पानी। इसके बाद है अखराजा, जैसे हम उर्दू में लफ्ज यूज करते हैं खारिज, अखराज। एक और चीज यहाँ पर याद रखनी है, यहाँ पर भी देखिए ये जो है अनजला, ठीक है, ये है और उसने नाजिल किया, अखराजा, फिर उसने निकाला, ठीक है। अगर ये होता ना वो नाजिल हुआ तो फिर ये होता नजला, और अगर ये होता खराजा तो फिर वो निकला। लेकिन ये जो अखराजा वाला आ जाता है ना, ये जिसमें अ वाली बात आ जाती है, अखराजा वाली, ये होता है फिर उसने निकाला। खराजा वो निकला, अखराजा उसने निकाला। ये एक छोटी सी टिप है, ये आपके काम आएगी QC3 में इंशाल्लाह। आप इसको बेशक लिख लीजिए, इसके नीचे लिख लीजिए कि अखराजा, अंजला, जिसमें ये अलिफ वाली बात आ जाए, शुरू में हमजा आ जाए, इसका मतलब होता है कि ये उसने करवाया है काम, खुद ने किया बल्कि करवाया। अच्छा जी, मिनस समा, समारात, ये जो हम उर्दू में भी यूज करते हैं, समर फल, बल्कि उर्दू के कायदों में शुरू में हम पढ़ लिया करते थे सा समर, से समर, तब उर्दू में तो से कहते हैं ना, से समर। रिज्कन, रिज्क को कहते हैं, लकुम हम लहू वाला पूरा टेबल कर चुके। फ ला, ठीक है, फ और ला दो टुकड़े। अगर मैं आपसे पूछूं तजअलू, जाअला का हमने पूरा टेबल किया था, तजअलू कहाँ पर आया था? ये है ला तजअलू, मत अमर करो, में। मत मत बनाओ। नहीं में, ठीक है, पहले नहीं में। हम्म, ऐसे होगा जैसे हम कहेंगे जाअला यजअलु, इजअल इजअलु, ला तजअल ला ला तज तजअलु। ला बस तजअलू। ना ठहराओ, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, लिल्लाही है, उसी तरह से पूरा हमने टेबल भी किया हुआ है ना। और सॉरी, टेबल इसका, हाँ, लाहू वाला टेबल तो किया ही था, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह में भी इसको याद किया था। वो जो लहू लहू वाला ये उसी तरह का है, ये अस्मा के साथ थोड़ा चेंज होकर जेर के साथ आ गया, क्योंकि इसको जोड़ के लिखा गया। अंदादन कहते हैं शरीक को, इसकी हम वाहिद जमा में इसको देख लेंगे। ये लफ्ज अब ऐसे याद रखना है आपने,
कुछ अल्फाज होते हैं मिलते जुलते, उनको याद रखना नहीं पड़ता बल्कि वो हमें याद रहते हैं। ये जो अंदाज है ना, इसको याद करना भी है और याद रखना भी है, ये कहते हैं शरीक को। दुआ का तर्जुमा हमने यहाँ पर जब के किया, इसको भी अब अच्छी तरह से याद रखिएगा। अच्छा जी, इसमें हम ये करेंगे कि मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, ये जो वाह इधर आपने कहा है, इसका मतलब जैसे वो हालांकि होगा, जबकि हालांकि भी हो हालांकि। सकता है, जबकि भी हो सकता है, हालांकि भी यहाँ ठीक। यूज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए उर्दू की रवानी देखिए, बस ना ठहराओ अल्लाह के लिए कोई शरीक जबकि तुम जानते हो। हालांकि भी कर सकते, हालांकि तुम जानते हो। मतलब इसका मतलब मैं इसको इमेजिन नहीं कर पा रही, यानी कि इवन दो आप, मतलब इसका इंग्लिश में होगा ना, इवन दो, इवन मतलब दो, हालांकि आप बिल्कुल तुम लोग जानते थे, ये उसी तरह से, ऐसे होगा ना। क्योंकि ये कोई नई हाँ बात नहीं है। ये आप जैसे हाँ ठीक है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। हम सबसे पहले मैं तो कहती हूँ, अगर अपना उठने को ही देख लेना, अपनी आंखें खोलना, जागना, और अल्लाह ताला तौफीक हमें अता फरमाता है कि हम अपने बिस्तर से उठते हैं, ये सारी क्या है, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। ठीक है, और इनमें से कोई नेमत ऐसी नहीं जिसे हम जानते नहीं है, जानते बूझते हुए हम शुक्र नहीं अदा करते अल्लाह हम्म। का। हालांकि उठते ही हमें जो पहली जी दुआ है वो भी जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से याद करवाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा अमातना व इलैहिन नुशूर। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर ये जो वाह है, ये जबकि और हालांकि वाला माना दे रहा है, इसको ना आप साथ साथ लिख लिया करें, क्योंकि इस पे हम बाज दफा ये होता है कि वाह का तर्जुमा तो हमें आता ही है और हमने किया हुआ है, तो वो हम तर्जुमे बाज दफा इस तरह से गलती कर जाते हैं। ये जो क्विज वगैरह थे, इसका मकसद ये नहीं होता कि हम देखें कि हमारे नंबर कितने आ गए, क्विज की वजह से हमें चीजें याद रहती हैं। अब इसमें से अगर क्विज में अगर आपको ये पूछ दिया जाए और उदाफी राशन वस्समाई बिना, आप टुकड़े कर ले, आपको एक एक चीज याद हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि अर्द मैंने कहा था ये इसम था, ये एक अलहदा चीज थी, फिर राशन पे हमें दो जबर नजर आ गई, ये भी इसम है। अस्समा में हमें अल नजर आ गया और वाओ एक अलग हर्फ है, बिनाअन में हमें तनवीन नजर आ रही। इन चीजों को हम समझना शुरू कर देते हैं, इसम इसम हर्फ इसम इसम, ये चीजें समझ आ जाती हैं। ठीक हो गया जी। अब है कि अपने नीचे में बिछी हुई जमीन को देखें, फिर ऊपर फैले हुए आसमान को देखें। अब हम ये देखते हैं, अगर जमीन नोकीली होती, देख लें, अगर इस तरह की जमीन होती हम कैसे रहते। जिन लोगों ने जिन लोगों ने हज या उम्रा किया हुआ है, जब आप सफा मरवा की पहाड़ी पे थोड़ी सी देर के लिए खड़े होते हैं, वो थोड़ी नोकीली है ना, पता चलता है आपको। वो जब आप सही करके पहुंचते हैं वहां पे, तो आपके पैरों को चुभती हैं। और अगर ये सारी जमीन ही नोकीली थी तो हम कैसे रहते। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि अल्लाह ने जमीन को फर्श बना दिया। अब ये बताया गया कि अगर आसमान की महफूज छत हमारे ऊपर ना थी तो हम नुकसानदेह शुआओं से जलकर मर जाते। बहुत से लोग इसको वैसे भी समझ रहे होंगे कि ये क्या चीज बनाई गई है, ओजोन वगैरह लेयर जो है, इसकी वजह से क्या होता है, ये सूरज की शुआएं डायरेक्ट हम तक नहीं पहुंचती। ये देखिए, ये जो एरोप्लेन है, ये बिल्कुल सही सलामत कैसे सफर कर रहे हैं। और अगर ये जमीन पे डायरेक्ट इस तरह से हरारत, इसकी तपिश पड़ती तो सब कुछ वैसे ही जलकर राख हो जाता। ठीक हो गया जी। ये जितना फासला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बना दिया सूरज के और हमारे गिर्द, अगर ये ना होता तो हम नुकसानदेह शुआओं से जलकर मर जाते, बहुत सी बीमारियां घेर लेती। तो इन चीजों को हमने जहन में रखना है। इसके बाद ये पूरा बता दिया गया कि अल्लाह ताला ने पानी बरसाने का निजाम कैसा हैरत अंगेज बनाया। ये देखें तो कुछ गोल घूम गया, कहाँ से पानी ऐसे उठता है, भाप बनता है, बादलों की शक्ल, फिर बादल बरस जाते हैं, फिर से वो इसी तरह से, ये देखिए पूरा अल्लाह ताला ने सर्कल बना दिया। फिर ये सारी खेती और ग्रीनरी सब कुछ, तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की सनाई की कारागरी है कि अल्लाह ताला ने पानी बरसाने का क्या ही हैरत अंगेज इंतजाम किया कि समंदर से भाप पैदा होती है, फिर वो भाप बादल की शक्ल अख्तियार कर लेती है, फिर बादलों से पानी बरसता है ताकि किसी को तकलीफ ना हो। और बारिश भी कैसी होती है, रुकती है, होती है, कभी मुसलसल होती है, फिर रुक जाती है। और अगर ये आसमान से बहुत सारा पानी इकट्ठा उतरे तो फिर कैसी तबाहकारियां हों, जैसे सैलाब वगैरह आते हैं। तो अल्लाह ताला हमें आजमाइशों से बचाए। फलों को देख लें, खास तौर पर जो हमारे लिए बनाए गए, अगर हम आम, जाम, मूज, सेब और संतरे वगैरह के अगर राई के दाने जैसे होते तो फिर हम क्या करते, फिर हम उनको कैसे छीलते, वो छोटे छोटे फलों को अल्लाह ताला ने मुनासिब साइज बनाए। अब आप देखिए बहुत छोटा छोटा फल भी होता है ना, जैसे ये होता है, ये गर्मियां फालसा वगैरह हो,
या कुछ चेरीज होती हैं, ये छोटे फल होते हैं, लेकिन उसको हम कैसे खाते हैं, उनके छिलके नहीं उतारते। लेकिन जो बड़े फल हैं जैसे आम वगैरह, उनके छिलके भी उतर जाते हैं, गुठलियां उनकी बड़ी हैं। तो ये अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीजें हमारे लिए नेमतें बनाकर उतार दी। वो कैसे? अल्लाह ताला ने जमीन से निकाला, अखराजा, यानी कि आसमान से पानी जमीन पर पड़ा, फिर जमीन से उगा दिया गया चीजों को। इसलिए रिज़्क अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को अता फरमा दिया। ऐसी आयत जब हम पढ़ें तो अल्लाह के लिए शुक्र और मोहब्बत के एहसास से पढ़ें, सुने तो दिल में शुक्र और मोहब्बत के एहसास बेदार हों। ये हमने क्या करना है, हमने ये जो अब आयात पढ़ी हैं इनकी हमें समझ आई कि देखिए अल्लाह ताला ने कैसी कैसी नेमतें हमारे लिए पैदा फरमाई, तो दिल से खुद ब खुद शुक्र वाले जज्बात पैदा होना शुरू होंगे, बल्कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का जितना भी शुक्र अदा करेंगे कम होगा। और जब सिर्फ अल्लाह ने सब कुछ मोहब्बत के साथ हमारा खूब ख्याल रखते हुए बनाया है, तो हमें अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत हरगिज नहीं करनी चाहिए। नमाज को तो वैसे सबसे पहले रखें क्योंकि नमाज फर्ज है। नमाज आपकी जब अगर रूटीन में आ गई, प्लान आपके नमाज के साथ जुड़ गए, तो उसके साथ आपकी रूटीन भी सीधी होती जाएगी और इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ आप मजीद इबादत की तरफ भी आते जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है सारी बहनें अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नमाज और इबादत का खूब ख्याल रखती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने दुआ भी करते रहना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी कि गुनाहों से बचने की हिम्मत ताकत दे और नेकी करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं हुआ, बल्कि कोई तो है, कोई ऐसी जात है जिसने ये सारे इंतजाम किए हैं। कोई तो है जो आसमानों और जमीन का मालिक है, क्योंकि जमीन, आसमान, मौसम, बारिश, फल वगैरह सबके दरमियान बेहतरीन ताल्लुक है। देखें, फल गर्मियों के फल गर्मियों में, सर्दियों के सर्दियों में, लेकिन जहां तब्दीली होती है उसे कहते हैं फार्मी है। उनके टेस्ट खत्म हो जाते हैं, उनकी अफादियत खत्म हो जाती है। कोशिश करता है इंसान, कुछ ना कुछ बनाता है, करता है, लेकिन ये कि वो हू बहू वो चीज पैदा कर ही नहीं सकता जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बना दी मौसमों के हिसाब से। मौसम कैसे बदलते हैं, एक एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया, दिन रात, इस रूटीन को देखें, हर चीज अपने एक निजाम के मुताबिक चल रही है। और बेशक ये कोई ऐसी जात है, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत है जो इन सब चीजों को चला रहे हैं। हाँ जी, कोई एक सिस्टर इसका तर्जुमा कर लें। माअन तक कीजिएगा, फिर दूसरी सिस्टर करेंगी। ये सिस्टर आसिया, अब माअन तक कर लीजिए, इतनी देर में कोई और सिस्टर हैंड रेज करें तो फिर हम उनसे अगला करवा लेंगे। अल्लाजी जिसने जाअला बनाया लाकुम तुम्हारे लिए अल अर्दा जमीन फिराशन फरश व समाई और आसमान को बिनाअन छत व अनजला और नाजिल किया मिनस समाई आसमान से माअन पानी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब और कोई करना चाहता है इसको लफ्ज ब लफ्ज? जी सिस्टर असमत हैं। अच्छा, सिस्टर जवेरिया ने कर दिया हैंड रेज जी। कर, मैंने कहा अगर कोई हैंड रेज नहीं करता तो फिर हम खुद कॉल आउट करते हैं। जी सिस्टर इब्तिदा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अखरजा, फिर निकाला, बिही, इसके जरिए, मिनस समराती, फलों से, रिज़्क़न लकुम, रिज़्क़ तुम्हारे लिए। फला, पस ना, तजअलू, मत ठहराओ तुम, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अंदादन कोई शरीक, व और अंतुम वाह का हमने तालमूना, क्या तुम तर्जुमा करना, जानते हो। दोबारा से कीजिएगा, वाह का क्या तर्जुमा करना है? तुम जबकि, व जबकि, अब आपको भूलना जबकि नहीं तुम चाहिए, जानते हो। ठीक है? अब आपको भूलना नहीं चाहिए, ये हम्म, याद रहेगा ना? वान तुम जबकि तुम जानते हो। हाँ जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह याद रहेगा। अच्छा जी। सिस्टर इसमें एक चीज है, ये अंतुम तालमूना, सिस्टर मुझे एक चीज बता दें, ये तालमूना का मतलब भी है तुम जानते हो, तो अंतुम का मतलब भी तुम जानते हो, तो ये दो दफा नहीं आ जाएगा? हाँ, ये जो दो दो दफा बात होती है ना, इसको हम इंशाल्लाह, इनके जो नाम है ना वो भी इंशाल्लाह आगे जाते जाते हमें इनके नाम भी आ जाएंगे कि इसको क्या कहते हैं। अभी के लिए इतना याद रखें, बात में ताकीद पैदा करने के लिए, जोर पैदा करने के लिए, एम्फेसिस हम्म, के लिए कहते हैं कि तुम ही हो वो लोग जो कि जानते हो। ठीक है, इसको इस तरह से याद रखा करें अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए।
یہ قرآن مجید میں آپ کو بہت بار جگہ جگہ نظر آئے گا کہ یہ جو انتم والا سیگا بھی یوز کیا گیا اور اس کے ساتھ جو افعال ہے اس کے بھی وہی والے سیگے یوز کیے گئے. یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے یہ جو جتنی بھی چیزیں ہم پڑھیں گے نا، ان کے نام ہیں، ان کے الگ الگ سے نام ہیں، ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، ہر چیز کو الگ الگ کیٹیگری میں رکھا گیا. پھر ان کو ہم اس طرح سے سمجھیں گے، ہم ایک دم سے سارا سمجھیں گے نا. جیسے میں نے ابھی بات کی، اگر بارش سارا پانی اکٹھا آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ سیلاب آ جائے گا نا. تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں گے، ایک ایک قدم آگے بڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ یاد بھی رہے گا اور سمجھ بھی اچھی آئے گی. یہ ساری چیزیں ہمیں آ جائیں جتنی ہم نے QC2 میں کرنی، QC3 میں ہم مزید تھوڑی سی اور آگے چیزیں سیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت آسان ہوتا جائے گا. لیکن یہ آپ کی آبزرویشن یہ بہترین ہے. سوال جو ہے نا، سوال آدھا علم ہوتا ہے. سوال ضرور کیا کریں، جو آپ کے ذہن میں سوال ہے فوراً پوچھیں. مجھے اگر جواب آتا ہوا میں فوراً جواب دوں گی، اگر مجھے نہیں آتا جواب تو پھر میں آپ سے کہوں گی کہ انشاءاللہ یہ ہم یا تو اپنے آگے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، اگلے کورسز میں، یا پھر یہ میرے سر کے اوپر سے گزر کے اب میں یہ اپنے سر سے پوچھ کے بتاؤں گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ کیونکہ یہ ہم نے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ آپ کو اگر جواب نہیں آتا تو آپ کہیں کہ مجھے نہیں آتا جواب، میں اس کو کسی سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو جو سوال آپ سوال ضرور کریں جس کا جواب میرے علم میں ہوا، میں انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور جو نہیں معلوم ہوگا اس کی پھر انشاءاللہ تہہ تک پہنچیں گے، مل کے پہنچیں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ترجمہ ہم رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی کہ پرانے لوگوں کی مثالیں سامنے رکھیے. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش پیدا کیا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق کے طور پر. تو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو. یہاں پر بھی آپ جب رواں ترجمے میں اور کی بجائے جب کے حالانکہ لکھ لیں تو یہ آپ کو زیادہ اچھی طرح سے یاد رہے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ اسباق ایک دفعہ ہم پھر گو تھرو کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کو دعوت، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے. اچھا جی، اب یہاں پر جو آپ نے اشارہ ہائی لائٹ کرنا ہے نا، وہ یا ایھا الناس اعبدوا کر لیں کہ اے لوگوں عبادت کرو. عبادت کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اے لوگوں عبادت کرو، یہ قرآن کی دعوت ہے کہ آئیں قرآن کو سمجھیں، عبادت کریں اللہ کی. قرآن کو لفظ ب لفظ حرف ب حرف پڑھیں سمجھیں. کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، تقویٰ حاصل ہوگا. اور بچوں، دنیا اور آخرت کے نقصان سے ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات پر غور و فکر کریں، شرک مت کریں کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اچھا جی، اس کے لیے ہم دعا کیا کریں گے؟ اے اللہ مجھے تیرے پسندیدہ طریقہ پر عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما اور ہر طرح کے شرک سے میری حفاظت فرما، آمین. اچھا جی، ہمارا پلان کیا ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ میں کچھ وقت کائنات میں غور و فکر کرتے ہوئے گزاروں گی اور سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کروں گی تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. اور اگر آپ اس طرح سے کوئی خود سے کام کرتے ہیں، کوئی اسائنمنٹ خود اپنے لیے چوز کر لیتے ہیں تو آپ شیئر بھی کیا کریں کہ میں نے یہ دیکھا، یہ سمجھا اور یہ میں نے اس پہ غور کیا تو مجھے یہ چیز پتا چلی. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے علم میں بھی یہ بات آ جائے، کیونکہ یہ جو ہمارا ڈسکشن گروپ ہے نا، صرف یہ اس طرح سے نہیں کہ ہم صرف وہ کورس سے ریلیٹ یہ والی چیزیں کریں کہ ہم نے اس میں ٹیبل بنا لی اور یہ اس میں کورس کے متعلق آپ یہ والی چیزیں بھی کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ نے کوئی پلان بنایا تھا یا آپ نے کوئی کسی چیز پر سرچ کی ہے تو آپ وہ والی چیزیں بھی شیئر کر سکتے ہیں. ایکسٹرا جو ہوتی ہیں جیسے کہ سلام اور گڈ مارننگ اور یہ جمعہ مبارک والی، ان سے ذرا کہا جاتا ہے کہ نہ اس طرح کی پوسٹ شیئر کریں، کام کی چیزیں پھر اوپر چلی جاتی ہیں. اچھا جی، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو آیات ہم نے پڑھی ان میں اسماء اور افعال کیا کیا ہیں. اسماء میں سے ہم دیکھتے ہیں سما اور سماوات، سمرا اور سمرات. یہاں سے آپ نے یہ چیز بھی غور کر لی، سمجھ لی، دیکھ لی کہ گول تا والی جو واحد ہے اس کی جمع الف تا والی، اور بعض دفعہ اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ہمیں کوئی نشانی تو نظر نہیں آ رہی لیکن ہم اس کو پھر بھی مؤنث کہہ رہے ہیں. کیوں مؤنث کہہ رہے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جو آپ کے ذہن میں آتی ہے بات کہ یہ کیوں سما کو ہم مؤنث کہتے ہیں، جو بھی آپ کے ذہن میں آئے بتائیے، ذرا شیئر کیجئے میرے ساتھ. غلط ہو یا صحیح ٹیچر ہو؟ اکثر ایسی لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، اسما نام بھی رکھتے ہیں لوگ اور فیمیل کا ہی ہوتا ہے.
बिल्कुल बिल्कुल, ये जो चीजें ना यही मैं कहती हूँ शेयर करें। अच्छा, इसकी जो अहम वजह है वो ये है कि हमने ये सुना है अरबों से, अरबों ने इसको ऐसे ही, अरबों ने कहा कि ये जो समा इससे हम इसको मुअन्नस कहेंगे। अब हमने क्या करना, हमने भी मुअन्नस कहना है, ठीक है, ये अरबों की मर्जी है। उन्होंने जिन चीजों को मुअन्नस कह दिया, उन्होंने कहा जहन्नुम के सारे नाम मुअन्नस, हम कहेंगे मुअन्नस है। अन्नार, हमें इसमें दुनिया नजर नहीं आ रहा कि इसमें गोल धातु नजर ही नहीं आ रही, तो हम इसको कैसे मुअन्नस के, ये उन लोगों ने मुअन्नस कहा है, ये कुरान मजीद में मुअन्नस के तौर पर इस तरह से सीखे इस्तेमाल हुए, तो हम भी इसको मुअन्नस ही कहेंगे। निद अंदाद, तो क्या ये हमारी आज की वाहिद जमा हो गई। तीन हरफी सेहतमंद अफाल, तीन हरफी कौन से होते हैं, जैसे पा, ता और हा, तीन हर्फ हैं, यानी कि इसके रूट लेटर में भी तीन ही वर्ड है, और सारे के सारे सेहतमंद है। उसमें से है अबदा, यअबुदु, उअबुद, आबिद, माबूद, इबादा, खलका, यखलुकु, उखलुक, खालिक, मखलूक और खल्क, जाअला, यजअलु, इजअल, जाइल, मजऊल और जाल। ठीक हो गया चीज। इसके बाद है रोज़ाका, यरजुकु, उर्जुक, राजिक, मरजुक, रिज़्क, अलिमा, यअलमु, इअलम, आलिम, मालूम और इल्म। अगर आप चाहें तो आखिरी के जो तीन हैं उनकी आप तनवीन लगा लिया करें ताकि पढ़ना और आसान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। तो भी 1 मिनट की, आधे मिनट की ब्रेक करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं अपना बी, यानी कि ग्रामर पार्ट। जी सिस्टर, मुझे बताइए ना, आपको अब नोट पैड शो हुआ? हाँ जी, हो रहा है। हो रहा है। मैंने कहा हम इसको पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं ताकि हमें समझना आसान हो जाए। आज का हमारा टेबल है वल्ला। अच्छा जी, आज हमने पढ़ना है अपना टेबल वल्ला, और इसके बारे में हम ये चीज पहले ही देख लेते हैं कि ये हमने शुरू किए हैं यकसा हरूफ वाले, ठीक है, इसको कहते हैं डबल हरूफ वाले। अब ये डबल हरूफ कहाँ नजर आते हैं हमें, ये हमें नजर आते हैं हमारे रूट लेटर में। ठीक हो गया। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस तरह का फेल है, सेहतमंद है, हमजा वाला है, कमजोर है या डबल हरूफ वाला, तो आपने क्या करना है, डबल हरूफ वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें रूट लेटर में एक लफ्ज 2 बार नजर आ रहा है। और ये कैसे बना है, ये था असल में दो ला ला। ठीक हो गया। अब दौला ला पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल था, तो अरबों ने इसको, या ग्रामेरियन ने इसको, या जिन्होंने जुबानदानी की, इसको बोला, लिखा, समझा, उन्होंने कहा कि हम इसका एक लाम दूसरे के अंदर मर्ज कर देते हैं। जब इन दोनों को मर्ज कर दिया तो फिर क्या किया, तशदीद दे दी। ठीक है, ये बन गया दौल्ला। अब ये जब दौल्ला बन गया तो इसका इसका मतलब है कि जब हम इसका बाप दौद पर इसे लेके आएंगे,
ये आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ज़न्ना के टेबल में नून था, तो ये बाब नून से ही था, ठीक है। दोल्ला के टेबल में हमें दौद नजर आ रहा, तो इसका बाब दौद है। ये छोटी मोटी टिप्स होती हैं, इनको आप सिर्फ इस तरह से याद रखा करें कि किसी ना किसी चीज से रिलेट करके याद करें ना, तो ये हमें याद करना आसान हो जाता है। ठीक हो गया जी। अब ये यहाँ पर हमें ये दौराबा जैसा लग रहा है, ठीक है। जब हम इसको दौला करेंगे तो ये हमें दौराबा जैसा लग भी रहा है, लेकिन अब क्योंकि ये किया कि इसका आपस में इसको जोड़ दिया गया, अब इसके बाकी चीजें हम वहां पर देखते हैं और फिर इसको हम देखेंगे कि किस तरह से इसे मुदारे और अमर बनाया जाएगा। अब हम इसको इंशाल्लाह शुरू कर लेते हैं। अपने हाथों को जरा खोलिए, हमने इशारे भी करने हैं। टीपीआई जरूर बिल जरूर करें। मैं अभी तक एक आदत पड़ी हुई है, तो अभी जब मैं ये लाकुम वगैरह पढ़ रही थी तो मेरा दिल कर रहा था मैं साथ साथ आपको इशारे कर करके बताऊं इस तरह से ये पढ़ना है। ठीक हो गया जी। आज का हमारा सबक है दोल्ला, यानी कि ये सीधे कुरान मजीद में 112 मरतबा आए हैं। एक दफा मुस्कुराइए कि ग्रामर खुशक मजमून नहीं है, इसको हमने बड़े अच्छे तरीके से समझना है, सीखना है। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, औला ज्यादा। इसीलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा। और हमारा फ्रेज थोड़ा सा लंबा हो गया, यानी कि ये भी थोड़ा सा अपग्रेड हुआ और इसमें शामिल हो गया। और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, जन्ना और द्वल्ला। और बाज़ दफा ये होता है कि हम इनके तर्जमे आपस में मिक्सअप कर देते हैं, लिखा ज़न्ना होता है और हम तर्जमा कर रहे होते हैं कि वो गुमराह हुआ। तो इस बात को भी आपने जरा कंट्रोल में रखना है कि ज़न्ना है गुमान करना और द्वल्ला है गुमराह होना। जिस तरह से था ज़न्ना, इसी तरह से है द्वल्ला। पूरा टेबल ये ज़न्ना की तरह ही होगा, लेकिन थोड़ी सी जो तब्दीली आएगी वो किस तरह से आएगी, जो तब्दीली आई थी नौफरा और द्वाराबा में। द्वाराबा में क्या हुआ था कि जब हमने मुदारे बनाया था तो जेर आ गई थी, जबकि नौसरा में क्या हुआ था, जब यौन शुरू किया था तो पेश आ गई थी। अब ये जो बाब नून पे ज़न्ना था, तो ये जो पेश थी ये पूरे आगे टेबल में चलती गई। अब जिस तरह से दौराबा में यदरिब हुआ था, इसी तरह से ये जो दोल्ला के टेबल में जेर वाली तब्दीलियां आ जाएंगी। दोल्ला वो गुमराह हुआ। अच्छा जी, अब ये करना है हमने कि अमूमन जब हमारे पास कोई तशदीद वाला लफ्ज होता है ना, तो हम उसको कहते हैं कि इसमें एक जो पहला वाला है वो है साकिन। तो क्या जी, जो भी हम जैसे इन्ना कहें तो हम कहते हैं ये है इन्ना, ठीक है। फिर हम इसको मर्ज करके ऐसा बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास दोनों जो है ना, द्वल्ला में दोनों के ऊपर जबर है, फतहा है। अब ये जब दोनों के ऊपर है तो जब हम इसका ये बनाएंगे खोलने के लिए अपना मुतकल्लम वाला इशारा, हाजिर वाला इशारा हमने खोलना है लाम को, तो अब इसमें ये हो सकता है कि ये अदला बदली हो जाए, ये वाली। ठीक हो गया जी, क्योंकि ये दोनों जो थे दोनों मुतहर्रिक थे। अब दो मुतहर्रिक में से कोई एक जो कुर्बानी देता है वो अल्फाज के बिल्ड अप होने पे होता है कि अब हम इसको यहाँ पे अगर करते साकिन, यहाँ पर जबर लाते तो ये पढ़ना मुश्किल हो जाता, दल लत पढ़ना बहुत मुश्किल था। तो इसमें ये हो गया कि अब पहले वाले को जबर दे दी गई और दूसरा लाम इसको साकिन कर दिया गया। ये क्यों किया गया, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इसी तरह से इन अल्फाज को लिखा है। हमने क्या करना है, हमने उसके पीछे थोड़ी बहुत वजूहात को ढूंढना है और फिर हमने उसको समझने की कोशिश करनी कि ये क्यों ऐसा हुआ होगा। तो हमें एक थोड़ी सी जो चीज समझ आई वो ये समझ आई कि यहाँ पर चूंकि ऐसा था कि एक दो में से एक जो था साकिन नहीं था, इस पे आम वो जो तशदीद वाला रूल नहीं था, तो इसलिए ये हुआ कि ये अखाड़ पछाड़ हो गई, ये अपनी मर्जी से अदला बदली कर ली गई। ठीक हो गया जी। इसमें आपने कोई कंफ्यूज नहीं करना, अपने आप को बिल्कुल परेशान नहीं होना, बल्कि हम क्या करेंगे, ये जैसे हम पढ़ेंगे एक एक टेबल हमें याद करना पड़ेगा। ठीक हो गया, एक टेबल हम याद करेंगे, उसके बाद क्या होगा, बाकी दोल्ला पे जितने अबवाब आएंगे
उन सब को हम इसी तरह से खोलते जाएंगे, इसी तरह से बंद करते जाएंगे और इसी तरह से हम पूरा टेबल बनाते जाएंगे। दौलत, इस तरह से भी पढ़ना मुश्किल था क्योंकि हमें ता के ऊपर जबर चाहिए थी, और अगर हम दौलत ता करते तो वो हमें बोलने में इंतहाई मुश्किल हो जाता। तो क्या किया, क्या दौल्ला, दौल्लू, दौललता, इसके बाद हम पूरा टेबल कर लेते हैं सब मुकम्मल। अच्छा, अच्छा मुझे लग रहा है इसका रट्टा ही लगाना पड़ेगा ये। अच्छा, शुरू में हो जाता है, शुरू में ऐसे ही लगेगा आपको कि मेरा रट्टा ही लगाना पड़ेगा, और हम इसकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे खत्म जी नहीं हो जानी। ये कुरानी मजीद के अल्फाज हैं, आप समझे। मैंने ये लफ्ज पढ़ा है, द्वल्ला पढ़ा, द्वल्लू जी पढ़ा, आप इनके अलग अलग करें। आप द्वाद, लाम, लाम और ता, 4 हो गए। 10 10 10 नेकियां, कितनी नेकियां हो गई? 40 नेकियां। जब हम ये चीजें सोचेंगे ना, ये हमें बहुत आसान लगने लगेगा। जितनी दफा पढ़ेंगे उतनी ज्यादा नेकियां अपने लिए जमा करते जाएं। क़यामत वाले दिन तो एक छोटी से छोटी, जिसको हम हकीर से हकीर भी समझ लें, वो भी नेकी हमें इतनी पहाड़ जैसी लगेगी। अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह उन नेकियों से मुस्तफीद करे। दोल्ला, दोल्लू, ये आसान था, जमा बनानी आसान होगी। फिर खोला, दललता, दलल तू, दलल तुम, दललना, और अगर इसकी बनाएंगे मुअन्नस तो क्या बनेगी? हिया दल्लत। वल्लत। क्या करना है, सिर्फ आगे ता जोड़ देनी, जज़म लगा देनी, ठीक हो क्या? वल्ला वो गुमराह हुआ, वल्लू वो सब गुमराह हुए, दललता आप गुमराह हुए, दललतु मैं गुमराह हुआ, दलल तुम आप सब गुमराह हुए, दलल ना हम सब गुमराह हुए, और दौलत वो औरत गुमराह हुई। यहाँ तक तो ये जन्ना जैसा था, जन्ना, जन्नु, जनंता, जनंतु, जनंतुम, जनन्ना, और इसी तरह से दल्ला, दल्लू, दललता, दललतु, दललतुम, दललना, कोई फर्क चेंज नहीं आया। चेंज कहाँ आएगा? मुदारे में आएगा। तो क्या थी, यहाँ पर जो चाबी है हमारे पास वो है दौल्ला, और उसके बाद हमने पूरे इसके सीखे सीखे। अब इसका ये है कि वो गुमराह हुआ, ठीक है, वो गुमराह हुआ। क्या वो गुमराह हुआ? हम कहेंगे गुमराही तो अच्छी चीज नहीं है, तो हम इसका कर देंगे नफी के साथ जवाब। तो हम क्या कहेंगे? हल दौल्ला, मा दल्ला। हल दौल्लू, मा दल्लू। हल दौललता, मा दलल मा मन दललतु। हल दललतुम, मा मा दललना। दललना। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अगर ये स्लाइड ना भी हो सामने तो ये कितनी प्रैक्टिस हमने कर ली है कि हुआ का जवाब हुआ से, हुम का हुम से, अंता का जवाब अना से, अंतुम का जवाब नहनु से। ये वही रूल कायदा जो हमने QC1 से शुरू किया था। अब ये याद हो गया ना, अब वो रट्टे वाली बात खत्म हो गई ना, क्यों सिस्टर्स? जी अब वो बात खत्म हो गई। अब क्या है, ये अब रवां हो गया हमारे हमारे जहन को, हमारे जैसे देखते हैं ना, अब ये जवाब हमें सोचना नहीं पड़ता, ये आंखें देखती हैं, जवाब हमें खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। कि अगर वाहिद की गायब की बात की तो हमने यही ही जवाब देना। आप देखिएगा, आप सब इकट्ठे अनम्यूट करते हैं, कोई ये नहीं कह रहा था। अगर मैं कहूँ कि हल दलल था, किसी ने ये नहीं कहा कि माँ दलल ना, आप तू का जवाब, ता का जवाब तू से ही दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल क्लियर हुए हैं। अब ये जो टेबल्स के हैं ये भी इंशाल्लाह इसी तरह से ये आपको जुबानी याद हो जाएंगे। आप इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहें। जैसे अब ये सिस्टर अफ्सा करवाती हैं रिवीजन, आप लोग सारे हमारे साथ जुड़े, हम QC1 की QC2 के रिवीजन में भी आपको लेंगे। ठीक हो गया जी? हम आपको एक मौका देंगे कि आप अगर चाहते हैं पढ़ाना तो हमारे साथ पढ़ाइए। शुरू में ये कि अगर आप रिवीजन की क्लासेस कराएंगे, आप इंशाल्लाह ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए। इस्लामाबाद में ट्रेनिंग करवाई जाती है अल-फलाह में, वहाँ ट्रेंड होके फिर हमारे साथ जुड़िए। हम आपको उसमें भी इंशाल्लाह जहां तक मुमकिन हो आपको हेल्प करेंगे, इंशाल्लाह गाइड करेंगे। अच्छा जी, तोल्लू का तर्जमा कीजिएगा। वो सब गुमराह हुए। वो सब गुमराह हुए। अच्छा जी, हल दलल तुम, मा दललना। हाँ दलल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब इसके बाद हम हर बार देखते हैं, और ये जो देखना है ये सिर्फ हमारी अपनी सेटिस्फेक्शन है। क्योंकि अगर हम कहेंगे दुल्ला को हम यफ्ताहू की तरह बना ले तो हम नहीं बना सकते, कि सिर्फ हमने देखना है। कि जैसे हमारे पास एक नया टेबल आ गया, हमारे पास 4 ऑप्शन है कि इसमें से किसी एक पर उतारना है। अब चूंकि इसमें जेर तो नजर ही नहीं आ रही, हम सामिया वाले बाब को बिल्कुल निकाल देते हैं।
अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, या तो हमारे पास फतहा या नसरा, उसके बाद है दौराबा। अब क्या किया जाता है, सबसे पहले या दल्लू ये बनाकर देख लिया गया, या दुल्लू बनाकर देख लिया गया, या दिल्ला। तो अब ये हमने नहीं कुछ चीज को करना, हम कौन होते हैं इसको कहने वाले कि ये नहीं से हमें तो ये अगर करना पड़े तो हम ज्यादातर बाब नून पर ही सारे टेबल ले आए, क्योंकि हमें नसरा पे बनाने पढ़ने आसान होते हैं। लेकिन ये जो अरबों ने कहा कि ये वाला या दिल्लू ही सही था, ये दौद बाब पर ही जाएगा, तो अब हमने इसको ऐसे ही पढ़ना है। ठीक हो गया, दोल्ला या दिल्लू याद रखने के लिए कि बाब दौद भी दौद से है और दोल्ला का टेबल भी दौद से है, थोड़ी ये आसानी हो जाती है ताकि जन्ना और दोल्ला आपस में मिक्स अप ना हो जाए। ठीक हो गया जी। पहले दिन सबक थोड़ा सा मुश्किल लगा करता है, लेकिन प्रैक्टिस मैथ के क्वेश्चन भी ऐसे ही होते हैं ना, जब पहले दिन हम खास तौर पर जब हम शुरू करते हैं सीखना, प्लस हो माइनस हो सीख जाते हैं, जिस दिन आपका मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आ जाता है थोड़े से फिर हम हो जाते हैं ना, वो समझ आ गई, उसके अगले 2-4 महीनों में डिवाइड आ जाता है। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई एक दूसरे का उलट ही होता है ना, होता तो वही है। जब तक समझ नहीं आती मुश्किल लगता है, लेकिन जब समझ आना शुरू हो जाती है तो फिर तो जितनी बड़ी से बड़े भी आप फिगर ले आए, हम इंशाल्लाह उसको ये तक कर ही लेते हैं। अब है यदिल्लु, यदरिबु की तरह बनाना है, वही कायदा यूज होगा जो आप सिस्टर अफ्सा ने अभी थोड़ी देर पहले क्लास में बताया। जो लोग क्लास में नहीं थे, आप रिवीजन क्लास जरूर देख लीजिएगा, इसमें ये था। अब हमने इसको यदरिबु की तरह बनाना है, यदरिबु। तो ये क्या बन जाता है, कोई बोले जरा क्या बन जाएगा ये? तदलीलु। यद लीलू, ठीक है, फिर ये यद लीलू बन जाता है। अब यद लीलू, यद लीलू ना तद लीलू, अब ये थोड़ा सा मुश्किल है पढ़ना, तो अब क्या किया गया, अब ये जो था या बहुत और ये जो लाम थी, दोबारा लिखते हैं, ये जो लाम थी इसको, दो लाम को इकट्ठा कर लिया गया, इकट्ठा करके हमने इसको दम्मा ही देनी है, पेश ही लगानी है। क्यों? क्योंकि यदरिबु में भी जो पेश है वही पेश, इस पे ये जो इसको हम कहते हैं कि ये जो फेल मुदारे है, इसको हमने एंडिंग जो करनी है इसकी, हमने इसको पेश पर ही एंड करना है। जहाँ आपको कुरान मजीद में जबर नजर आ जाए या जज़म नजर आ जाए, तो उसके आगे पीछे आपको कोई ना कोई इसकी वजह नजर आएगी, जो हम इंशाल्लाह अगले कोर्स से सीखते जाएंगे। अब ये किया गया कि ये जो दो पेश, एक पेश और था, इसको लाके अब ये जो जेर है इसको कहीं ना कहीं यूज करना था, ये जो, ठीक है। अब ये पेश इसको, सॉरी, जेर को जब यूज करना था तो हमने देखा पीछे दौद के ऊपर एक साकिन है और लाम के नीचे है जेर, तो क्या अब ये था ना, यूं था ना। अब ये जो है, जब हमने लाम खत्म किया, इसकी जेर हमारे पास बच गई, और पिछली जो हरकत है वो चूंकि सुकून है, सुकून गिराया जा सकता है, ठीक है। सुकून को कहते हैं ना, गारिद कर दिया किसने, एक जेर ने, ठीक है। अब ये जब सुकून चला गया तो ये लफ्ज हमारे पास आ गया यू दिल्लू, सॉरी या दिल्लू, मैं इसको, ये तशदीद आपने जरूर बिल जरूर लगानी है। इस कायदे को हम दोबारा एंड पे फिर दोबारा से समझेंगे, ठीक है। हम इसको बोर्ड पे अच्छे तरीके से समझ लेंगे, अभी हम अपना टेबल कंप्लीट करते हैं। और अगर ये समझ में ना आए तो आपने इसके लिए परेशान नहीं होना, आपने ऐसा करना है, एक टेबल याद कर लेना है, ठीक है। एक टेबल याद करेंगे फिर बड़ी आसानी हो जाती, बाकी टेबल उसी की तरह बन जाते हैं। यदिल्लु वो गुमराह होता है या होगा, यदिल्लु ना वो सब गुमराह होते हैं, तदिल्लु आप गुमराह होते हैं, अदिल्लु मैं गुमराह होता हूँ, तदिल्लु ना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लु हम सब गुमराह होते हैं, या तदिल्लु वो औरत गुमराह होती है। यदिल्लु यदिल्लु ना तदिल्लु, अदिल्लु तदिल्लु ना नदिल्लु, और या तदिल्लु, ठीक हो गया जी। अब कोई दोहरा ले इसको, माजी और मुदारे दोनों दोहराने हैं,
ٹھیک ہے, کوئی ہینڈ ریز کریں ذرا. جی اچھا جی, 2 لوگوں نے ہینڈ ریز کیے, 3 لوگوں نے, ٹھیک ہے. پہلے سسٹر جویریہ, پھر سسٹر نورین, پھر سسٹر آسیہ. ٹھیک ہو گیا جی, تینوں باری باری دوہلال. ترجمہ بھی شک نہ کریں. دلوا دلو دللتا دللتو دللتم دللنا دلت يدل يدلون تدل أدل تدلون ندل ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ هي سسٹر. هي تدل. ٹھیک ہو گیا. جیسے جیسے میں نے نام ترتیب سے لیے تھے اسی طرح سے کر لیں, پھر ہم باقی لوگوں کو چاہیں سے. دلّا دلّو دللتا دللتو دللتم دللنا ہیا دلت یدلو یدلونا تدلو ادلو تدلونا ندلو ہیا تدلو. جی اب نیکسٹ. ہیا دل دلو دللتا دللتو دللتم دللنا دلت یدلو یدلون تدلو ادلو تدلون ندلو اور تدلو. یا تدلو. اچھا جی, یہ پہ ایک اور 2 سسٹر نے اور ہینڈ ریز کیے تھے. سسٹر ہیں آئی فون پہ ہیں, سسٹر رفت ہیں شاید. رفت. رفت, ہاں جی, اب مجھے جی. تھوڑا سا یاد ہونا شروع ہو گیا نام. اور سسٹر ریحانہ, آپ دونوں بھی کر لیجیے. اہم ٹیبل ہے, ضرور بھی ضرور سارے کیا کریں. جی میں کر لیتی ہوں پہلے. دلّا دلو دللتا دللتو دللتم دللنا ہیا دلل ہیا دلل دلت دلت دلت. ٹھیک ہے. یدلو یدلونا تدلو ادلو تدلونا ندلو ہیا تدلت. آپ نے ماضی اور اس کو مکس اپ کر دیا. آپ نے کہا آج سسٹر نورین کچھ نہ کچھ مرج کر رہی ہیں, آج میں بھی ماضی اور مضارع مرج کر کے دکھاتی ہوں ان کو. مجھے یہ مؤنث کا نہیں یاد ہو رہا تھا. تدلو, بس ہاں نہیں تدلو پتا اس یا تدلو. تدلو. مرج ہم نے ٹھیک کرنا ہے, پر جزاک اتنا اللہ. نہیں کرنا کہ یہ سارا کچھ چوم ہو جائے. ٹھیک ہے کیا جی. چلیے جی, اب ٹھیک ہے. کریں. دلہ سے شروع کریں. اگلی سسٹر سسٹر ریحانہ. ضل ضلوا دللت دللت دللتم دللنا هي ضلال ضلت دلت دلت. پتہ کیا دلت کریں آپ کو, یہ جو دلت. مجھے بھی یہ فیمیل مشکل والا لگتا ہے جو نا, ہے نا وہ اس میں صرف ہم نے یہ کرنا ہے. اب آپ دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا دلہ, اب اس کے آگے صرف ایک تا لگاتے ہیں, ساکن تا. ٹھیک ہے, وہ آپ کا ساکن پورا ہو ٹال جاتا ہے. جیسے ہم اردو میں کیا کرتے ہیں, جیسے ہم عابد نام و ہا لگاتے تھے, عابدہ ماجدہ ساجدہ, وہ صرف ایک جو ہا ہے وہ مؤنث بنا دیتی ہے. نام پورا کا پورا ویسے ہی آ جاتا ہے. آگے ایک جو گول تا ہم لگاتے ہیں جس کو ہم تا کے نقطے گرا کے تو ہا بناتے ہیں, اور کوئی تبدیلی نہیں کرتے. اب عربی میں کیا ہے, عربی میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کے آگے ہم نے صرف ایک تا لگا دینی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم نے تا ساکن لگا دیتی ہیں, تا بس ساکن والی, اور پیچھے جو لام ہے اس کے اوپر تشدید لگ جائے گی وہ کہ تشدید وہ دلت. رہے گی, وہ سب کچھ رہے گا. ٹھیک ہے, وہ اچھا رہے گا. ٹھیک. یدلو یدلونا تدلو ادلو تدلونا ندلو ہیا تدلت. ہاں, انتا تدلو اور ہیا تدلو. یہ جو انتا والا ہے ہیا یہی ہیا کے ساتھ تدلو. آ جاتا ہے. یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا, قرآن مجید میں کانٹیکسٹ میں بتائے گا کہ یہاں پر یہ مؤنث والا صیغہ یوز ہوگا یا یہ ہمارا حاضر والا صیغہ یوز ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ٹیبل ہمارے تھوڑے تھوڑے سے یہ فی الحال مشکل ہے, یہ انشاءاللہ بہت اچھے اچھے یاد ہو جائیں گے. ہم نے کہا تھا ماضی کی نفی ما سے کرنی ہے, مضارع کی نفی لا سے کرنی ہے. ہل یا دل سب انمیوٹ کیجیے گا. لا يدل هل يدلون لا يدلون هل تدلوا لا لا أدل لا ادلو. أدل هل تدلون. لا لا أدل يدل اب ہم کیا کہتے ہیں,
کیا وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے, سبیل راستے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. حل یدلو, کیا وہ بھٹک جاتا ہے. ہم نے کہیں پر بی یوز کیا, کہیں پر لی یوز کیا, تو یہ جو دولا والا ٹیبل ہے یہ کون سا حرف جار استعمال کرے گا, یہ ان کو یوز کرے گا. کیا وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے. حل یضل عن سبیل اللہ, تو کیا ہم آنسر کریں گے؟ لا لا يدل يضل عن سبیل يضل اللہ عن سبيل الله. ٹھیک ہو گیا جی. حل یضلون عن سبیل اللہ, لا يدلون عن سبیل عن اللہ. سبيل الله. چلیے جی آج چینج کر دیں, آپ مجھ سے پوچھیں اگلا سوال. هل تضل عن سبیل اللہ سبيل الله. لا اضل عن سبیل اللہ, هل تدلون عن سبيل تضلون الله عن سبيل الله. لا نضل عن سبیل اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف یہ نہیں یاد رکھنا کہ یہ ہمیں صرف جواب ہی یاد ہو, ٹھیک ہے, ہمیں کویسچن کرنے بھی آنے چاہیے, کیونکہ ہم نے ٹیچر بننا ہے نا, تو ٹیچر بننے کے ساتھ ساتھ ہم پریکٹس بھی کرتے جائیں گے. اچھا جی, یضلون کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ سب گمراہ ہوئے یا ہوتے ہیں ہوتے ہیں, وہ سب گمراہ ہوتے ہیں اور وہ سب گمراہ ہوں گے. دو جواب ہو گئے, ٹھیک ہو گیا. دونوں آئیں گے. ہاں دونوں آ جائیں گے. وہ سب گمراہ ہوتے ہیں. يضلون اوکے جی, الحمدللہ. حل یضل عن سبیل اللہ, لا يضل عن سبيل الله. یا ہاں بالکل, باقی تو الفاظ وہی ہیں. حل کا نعم یا لا جواب ہوتا ہے, باقی ہم نے وہ دیکھنا. تو الحمدللہ یہاں تک ہم نے کمپلیٹ کیا. اچھا جی, ہم نے جیسے کہا تھا زنا سے زنا بنایا تھا, اب چونکہ پیش والا تھا تو اس پیش کو ہم لے کے چلے تھے. یہاں ہم کیا کریں گے, یہاں ہم اس بود کو لے کر چلیں گے اس کی زیر کے ساتھ. ہو گیا جی, یہ یا گر گئی تو یہ بن گیا دلو. لیکن اب یہ کہ اب ہم اس کو ساکن تو کر نہیں سکتے کیونکہ یہ تشدید والا ہے. اگر ہم ساکن کریں گے بھی تو ہم اگر اس کو ایسے ساکن بنانے کی کوشش کریں, چلیں اگر اس پہ ہم زبر دے دیں, اس پہ ساکن کریں, تو یہ دو ہیں, یہ پھر اس صورت میں گر جائے گا, تو پھر ایک نہ ایک تو باقی بچنا ہی ہے نا, جو ہمارا وہاں سے شروع ہوا تھا دلل تا سے, دلل تا, ٹھیک ہو گیا. اب ہم جب اس کو اسی طرح سے لے جائیں کھولنے میں, کیونکہ یہاں پر ہم نے وہ لام کو کھولا ہے, ٹھیک ہو گیا جی. تو پھر یہ ہو جائے گا اب کیونکہ ساکن رہنا نہیں ہے تو اس والے کو گرا لیا, کیونکہ وہ ساکن جو ہے وہ گر جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب ہمارا نکل آئے گا اس میں سے فعل امر ذلہ, ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم اس ذلہ کو ہی آگے لے کے جائیں گے, جیسے ہم نے زنا کہا تھا کیونکہ اس کے پیچھے پیش تھی تو ہمارا وہ زنا بن گیا تھا, اب یہ ذلہ بن جائے گا. اس پہ آپ نے بہت زیادہ کوئی سائنس نہیں نکالنی کہ اس کو ہم نے کیسے کر دیا, کیا کر لیا. اب ہم اس کو صرف اسی طرح سے یاد رکھ لیں گے کہ یہ دلہ کا ٹیبل جو تھا دلہ ذلہ دلن, یہ اس کی تین چیزیں یاد رکھ لینی ہے. اس کا ماضی, امر اور مصدر, تینوں میں ایک جیسے الفاظ یوز ہونے ہیں. اب ایک جیسے الفاظ یوز ہونے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی جو تنوین ہے یا پھر جو زبر ہے اس کی تبدیلی نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ ٹیبل ہمارا کیسے چینج ہوگا. دلہ ولو لا تضل لا تضلو, یعنی کہ گمراہ ہو تم سب گمراہ ہو جاؤ, لا تضل مت گمراہ ہو, لا تضلو تم سب مت گمراہ ہو. یہاں پر ہمارا یہ والا ٹیبل امر نہیں تک کمپلیٹ ہوا, اس کے بعد ہے ضالن, ٹھیک ہے. اب ضالن کہیں, ضالن کہیں یا ضالن کہیں, ٹھیک ہے. ضالن, 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 تینوں میں سے کوئی بھی تنوین لگا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے مفعول, یعنی کہ جو گمراہ ہوا
अब गुमराह होने वाला जो कोई असर नहीं पड़ता, जो गुमराह होता है उसका किसी पे कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि वो सिर्फ खुद ही गुमराह होता है। इसीलिए ऐसे टेबल जिनको मफूल की जरूरत नहीं हो हम उसको डैश कह देते हैं। तो हसन डैश जी जी, कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही या आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही, बताइएगा मुझे। आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी, मेरी आ आवाज रही है। चलिए ठीक हो गया। मेरी तरह इसकी बैटरी भी कुछ कम है, मैं खोल लूँ जरा दूसरी तरफ भी। अच्छा जी, और इसकी जो है जुन्ना में जन्ना, जुन्ना और जन्नुन वो थोड़े ज्यादा मिलते जुलते थे, तो अब इसमें ये हो जाएगा कि हम ये कर सकते हैं इसके लिए कि इसका हम इसको द्वल्ला, द्विल्ला और दलालत, ठीक है, ये इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। जन्ना वाले टेबल में वो माजी के जैसा मिलता जुलता लगने लग जाता है। उन तीन लफ्जों को याद कर लें और इसके तीन अलग अलग से याद कर लें, इंशाल्लाह ये बड़ी आसानी हो जाएगी। ये लद्वालीन से भी याद किया जा सकता है ना, जो ये लोग बिल्कुल गुमराह अभी हुए हम इसको आगे लेके लद्वालीन। जाते हैं, इंशाल्लाह इसको हम उससे भी याद करेंगे। हल हम दौलूना अनित तौरीक, यानी कि क्या वो सब गुमराह होने वाले हैं अनित तौरीक रास्ते से। कौन सा आंसर सही लग रहा है? अच्छा जी, ये इसका ना ये देखिएगा, ये जो है ला वाला ठीक हो गया, ये ना ला इसको मेरे ख्याल से वो एक ऐसे लग गया है कि इसको ला वाला आंसर सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सब रास्ते से भटकने वाले नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो वही सब ये दलाला, ये मस्तर यूज हो गया, हमारे अंदर कोई गुमराही नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं कि हमने ये अभी इसको मस्तर के साथ ऐसे यूज नहीं किया। अब मैं ऐसा करती हूँ कि इस टेबल पे थोड़ा सा हम इसको ठीक कर लेते हैं ताकि आपको पढ़ना हो जाए आसान। अच्छा जी, 2 लोग पढ़ेंगे क्योंकि आज टाइम हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। जी सिस्टर शुरू कर लीजिए, कौन सी सिस्टर पढ़ करना चाहेंगी? दोनों बारी कमर बारी नहीं। करना। जी सिस्टर कमर नईम आप शुरू कर लीजिए। दल्ला, दल्लू, दलल, दल्लत, दल, दललता दललता दलत, आसान हो जाएगा। दल्ला, दल्लू, दललता, दललतु, दललतुम, दललना, दल्लत। यदिल्लु, यदिल्लूना, तदिल्लु, अदिल्लु, तदिल्लूना, नदिल्लु, तदिल्लु। ठीक हो गया जी, दिल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह। दिल्ला, दिल्लू, ला तदिल, ला तदिल्लू, दालिन, डैश डैश, दलाला। ओके जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरी सिस्टर भी कर लें। या ऐसा करें, इस टेबल को मैं करती हूँ, पूरा टेबल आपको करके दिखाती हूँ, आसान हो जाएगा। दल्ला, दल्लू, दललता, दललतु, दललतुम, दललना और दल्लत। या दिल्लू, या दिल्लूना, तदिल्लु, अदिल्लु, तदिल्लूना, नदिल्लु और हिया तदिल्लु। दिल्ला, दिल्लू, ला तदिल्ला, ला तदिल्लु, इसके ऊपर आपने तशदीद लगानी है, ठीक हो गया जी, यहाँ पर मिस हो गया। दौलुन डैश दलालतुन, दौलुन डैश दलालतुन। अच्छा जी, अब इसकी ये है कि 2 तरह की जमा बन सकती है ना, दौलून और दौलीन। अब आप मुझे बताइएगा दौलीन हमने कहाँ पढ़ा? दौलीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा में। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि अब हमें आज पता चल गया कि ये जो दौलीन है ये इसम फाइल है और या नून वाली जमा है, ठीक हो गया। अब हम इसको इंशाल्लाह ऐसे ही याद रखेंगे। अच्छा ये पूरा टेबल है, हमने एक दफा पढ़ लिया। अब आपने ये वाला टेबल जो है ना, दुल्ला का और जन्ना का, ये दोनों टेबल आपने ग्रुप में सुनाने भी हैं ताकि इनकी अच्छी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। 6 चाबियां हैं, दुल्ला या दिल्लू, दिल्ला, दौलन और दलालतन डैश, सॉरी मैं भूल गई, दुल्ला या दिल्लू, दिल्ला, दौलन डैश और दलालतन। अगर आपको जैसे आपने QC1 के जो सॉरी QC2 में आपने शुरू में एक लेसन किया था,
अगर आपको दौल के ऊपर कोई भी हरकत ना दिखाई दे तो आप दोनों तरह की जमा बनाएंगे। ठीक हो गया जी। दौल्ला से कौन सी है 3 चाबियां अफ़आल की? कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? सी वाला अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी अब जल्दी से ये कर लेते हैं ताकि नमाज भी टाइम पे पढ़ लें। तो आप लोगों के पास अपनी अपनी जरा वर्कबुक देखिए, यही है या कुछ और है? सिस्टर मेरे वाली में लिखा हुआ है तुम सब गुमराह ना हो जाओ, बस अच्छा इससे जी। आगे। और चले ठीक है, उसको भी कर लेते हैं। तो बस क्या पढ़ा है? फला फला। अच्छा जी, ये जो है ना इसको हमने अलग कर लेना। कैसे? अनतरीक। दोबारा लिखिए, इसमें तार आ गई। सिस्टर फला तदिल्लु बन जाएगा बच्चे। ठीक हो गया। यानी कि मैं पता क्या करना चाह रही थी, हम इसके टुकड़े बना लें। इसका हमने कर लिया फा और इसका हम कर लेते हैं अनित तरीक, ताकि ना आप लोगों को आसान हो जाए समझना। हमारे पास बीच में क्या बच गया? तुम लोग ना हो जाओ। अब ये जो है ला तदिल्लु, ठीक है। अब ला फा के साथ तदिल्लु अजिला जी क्योंकि जुड़ सकता है, फला तदिल्लु, यानी कि ये फेल नहीं यूज हुआ है। तदिल्लु। और जो सिस्टर आप बता रही थी आपकी बुक में है, सिस्टर मेरी बुक में सिर्फ इतना ही है, तुम सब गुमराह ना हो जाओ। अच्छा जी, वो है तुम सब ला तदिल्लु सिर्फ। गुमराह ना हो जाओ। हाँ जी, ये तो फिर आसान हो गया क्योंकि ये फेल हाँ जी नहीं है और सिर्फ बिल्कुल ला सिंपल है, तदिल्लु जमा आपने यूज कर लेनी है। सिंपल है। हाँ ठीक है। वाला दौलीन, ओहो ये तो बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसको हम कैसे करें? चलिए जी, और कौन ना इसको बता दो? गुमराह होने वाली, और ना और ना गुमराह होने वाले, ना गुमराह होने वाले। गुमराह ठीक होने हो वाले। गया, गुमराह होने वाले। ठीक है, दौल का मतलब है गुमराह होने वाला, और दौलीन गुमराह होने वाले ज्यादा है, क्योंकि दौल सम फाइल है, इसकी 2 तरह की जमा बन गई, दौलून दौलीन। ठीक हो गया जी। हल हुआ दौलुन अनित तौरीक, क्या वो गुमराह होने वाला है रास्ते से? हाँ में जवाब देना है। नाम हुआ दौल बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक हो गया जी। रूट लेटर। अच्छा नाम जी, हुआ दाल बैटरी काफी हो गई है कमजोर, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ से जल्दी से हम अगला कर लेते ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए। ना होगा ताल्लुल अक्सम तदी। सिस्टर आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है। आवाज सिस्टर नहीं है आवाज बस। नहीं आ रही। आप लोग नहीं बोले ना उठ वो। किया हुआ, सॉरी सॉरी। खर्रा खर्रू खर्रता खर्रतु खर्रतुम खर्रना और खर्रत। इसी तरह से या खिर्रू या खिर्रूना तखिर्रू अखिर्रू या फिर तखिर्रूना नखिर्रू या तखिर्रू। उसके बाद दौलिन, इसके साथ सॉरी खिर्रा खिर्रू, ला तखिर्रा ला तखिर्रू। इसका एक और भी बन जाता है इखरिर इखरिरू इदलिल इदलिलू। ठीक है, ये 2 तरह के हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं ये नजर आ जाए, तो इखरिर भी हो सकता है। ठीक है, खिर्रा भी हो सकता है, इखरिर भी हो सकता है। फिर ये कि उसकी जमा भी इसी तरह बनाएंगे, जैसे अगर हम कहेंगे खिर्रा तो हम खिर्रू कहेंगे, इखरिर का तो फिर इखरिरू कहेंगे। ठीक हो क्या? फिर हम कहेंगे ला तखरिर ला तखरिरू। अगर हम इसको सिंपल दुल्ला की तरह करते हैं तो खिर्रा खिर्रू लाता खिर्रा लाता खिर्रू। ठीक हो गया जी। उसके बाद खारुन मखरूरुन और हर्रुन। ठीक हो गया, ये उसी तरह गन्नुन की तरह आ गया हर्रुन। हम इसको यहाँ से कंप्लीट कर लेते ताकि ये बंद होने से पहले पहले हम इसको कंप्लीट कर लें। अच्छा जी, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्चुअली इसकी आज जरा बैटरी का इशू है,
تو ہم ایسا کر لیں گے کہ انشاءاللہ اس میں جو اب رہ گئی ہیں کچھ تبدیلیاں اس کو ہم اگلی جو کلاس ریویژن والی اس میں ہم انشاءاللہ اس کو سیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا جی.